Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll take up the second part of sources and sinks. Okay, so in this case what will happen that there will be a boundary in fact. Let us say ki this is a fluid. Okay, so if we put a boundary here, let us say this is a boundary, rigid boundary basically. So of course यहाँ पे जो fluid होगा it cannot pass this rigid boundary. यहाँ पे नहीं आ सकता ये. ठीक है. So basically अगर rigid boundary है, if there is a rigid boundary then flow across it will be zero, means normal जो flow होगा इस boundary across that will be zero. Okay, so अच्छा, further we know that कि कोई भी जो stream line होती है उस पे if we draw a tangent then that gives the velocity direction of velocity of a fluid flow. ठीक है. तो जो stream line है flow उसके along होता है, उसके perpendicular there will be no flow. Okay, so basically if we could replace a rigid boundary by a streamline तो भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि by the definition, by its very definition we can say that streamline is something which basically barricades a flow through across it. Okay, so by same thing is valid for rigid boundary as well, means any flow across it is zero or so basically इस concept में what we will do, will replace rigid boundary by streamline and then treat it as a simple fluid flow, infinite fluid flow. Okay, so then we'll be able to use the concepts we have learned as of now, right? So बस इसमें बस एक ही concept का ऐड है. So basically जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उन सब का cumulative use है. Okay, they means integrated use है. Isolation में we cannot read these things. Okay, so let us start this concept. It's very simple. There has been question from it in 2013. Okay, so we'll discuss that question as well. In 2013 there was a question based on it. Okay, अच्छा, so what we can say, there is no fluid flow across a rigid boundary, of course. Okay, further as there is no fluid flow across a streamline, so a rigid boundary in a fluid flow can be replaced by a streamline in such a way that a stream function is constant along the rigid boundary. Of course, that is the definition of streamline. Streamline is nothing but locus of those stream functions which are constant. ठीक है. So basically if we are seeing this streamline, अच्छा हमने ये भी पढ़ा था one of the previous lecture where I discussed physical interpretation of stream function कि along जो है stream function basically along streamline stream function constant होता है और हमने ये देखा था कि flux across curve AB is given by psi b minus psi a, मीन्स ये कोई कर्व है. अच्छा वहाँ पे मैंने आई थिंक स्ट्रीम लाइन यूज की थी कि फ्लक्स अक्रॉस स्ट्रीम लाइन, दैट इज नॉट स्ट्रीम लाइन. मैंने आई थिंक उस पर नोट भी पिन किया था कि दिस इज ए सम जनरल कर्व. ओके, सो फ्लो अक्रॉस इट, यहाँ से जो फ्लो हो रहा होगा थ्रू दिस कर्व that will be given by psi b minus psi a, means difference of stream functions at a and b that will give the flux across ab, this curve ab. ठीक है. तो अगर ये कर्व ए बी है, इसको इफ वी टेक स्ट्रीम लाइन, अगर मान लो ए बी जो है इसको स्ट्रीम लाइन ले लिया जाए तो अलोंग स्ट्रीम लाइन जो होता है साई जो वो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब साई बी माइनस साई ए क्या हो जाएगा, दैट विल बी सी माइनस सी, दैट इज जीरो. ओके,
सो अगर ए बी स्ट्रीम लाइन है तो इसके अक्रॉस देयर विल बी नो फ्लो। ओके, सो सेम इज वैलिड फॉर रिजिड बाउंड्री एज वेल। तो हमारा जो इसमें इस चैप्टर में जो मकसद रहेगा वो ये रहेगा कि अगर मान लो मैं कोई फ्लूइड है उसमें रिजिड बाउंड्री दे दी और मान लो यहाँ कोई सोर्स रखा हुआ है, तो व्हाट वी विल डू कि हम लोग इस जो रिजिड बाउंड्री को हटा के इसकी जगह स्ट्रीम लाइन कर इसको स्ट्रीम लाइन से रिप्लेस कर देंगे। पर फॉर दैट इसकी जो इमेज सिस्टम होगा वो हमें पता करनी पड़ेगी। बेसिकली हमें सोर्स और इसके लिए कुछ सोर्स या सिंक हमें ऐसे रखने पड़ेंगे ताकि ये जो पॉइंट है, इस जो बाउंड्री है, इस पे स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट आए, ठीक है, या यहाँ पे फ्लक्स जो है थ्रू इट जीरो हो जाए। बेसिकली यहाँ पे जो भी फ्लो होगा वो टेंजेंशियली होगा, नॉर्मल देयर विल बी नो फ्लो। ओके, सो आई होप ये समझ में आता है। सो लेट अस डिस्कस दीज टू आर वेरी फेमस केसेस जो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। केस वन, image of a source with respect to a line. Okay, so basically if boundary is a line, boundary is a line, okay, what we are discussing is in two dimension. Okay, so image of a source with respect to a rigid boundary which is basically a line. Okay, so let us say कि ये जो है y axis है, this is boundary in infinite fluid flow, ठीक है, fluid flow is irrotational of course, ठीक है। So let us say कि यहाँ पे कोई सोर्स है a,0 पे we have kept a source of strength m. Okay, then we are asked to find image system of this image system. Image system means when we are asked that what will be image system of a source m which is kept at a,0 and the y-axis is a rigid boundary, then the image system means to remove the process to remove this boundary and replacing and putting some sources or sinks in such a way that the resultant complex potential of all these sources will give rise to the y-axis as streamline. Okay, so आई होप समझ में आता है। so basically हमारा मकसद क्या है, इसको हमें रिप्लेस करना है। दिस विल बी इक्विवेलेंट ऑफ लेट अस से कि यहाँ पे कोई सोर्स, ये y-axis है, दिस इज x-axis, so a,0 पे we have a source of strength m, so let us put another source of strength m at minus a,0. Now if we try to or we basically calculate complex potential due to these two sources on y-axis, then basically from that we can say कि जो psi है वो constant आ जाएगा, that will be some constant. So y-axis जो होगी वो that will be a streamline, ठीक है। So basically जो भी rigid boundary होगी उसको streamline से replace करना है, ठीक है। रिजिड बाउंड्री की जगह स्ट्रीमलाइन कर दिया, उसके बाद हमें उसी टाइप से सोर्स और सिंक अरेंज करना ताकि वो जो है जो हमने स्ट्रीमलाइन बनाई है वो वाकई में स्ट्रीमलाइन हो, ठीक है। सो अच्छा, अगर ये जो अरेंजमेंट हमने बनाया है, मान लो दिस इज अ वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज सोर्स एट a,0 ऑफ स्ट्रेंथ m एंड अगेन देयर इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एट माइनस a,0, ठीक है। हाँ, यहाँ इस केस में देयर इज दिस इनफाइनाइट फ्लूइड फ्लो, ठीक है। नाउ देयर इज नो बाउंड्री, बाउंड्री हैज बीन रिमूव्ड। ओके, बाउंड्री हैज बीन रिमूव्ड, या वी हैव बेसिकली टेकन रीड ऑफ बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री को हटा दिया हमने, ठीक है। सो अब देखो, ओके, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू sources kept at minus a,0 and a,0, ठीक है, complex potential at point P, let us say x, y are the coordinates of that point, ठीक है। अच्छा, हमें तो सिर्फ इस पे देखना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट विल बी x will be 0 and y will be y, okay, because this is in y axis. Okay, so at point P, so point P जो है that is 0, y, ठीक है। so complex potential क्या होता है, W equals to minus m log z minus z naught, so z naught is a here, again this is also source of strength m, so minus m log z minus z naught, so यहाँ पे z naught is minus a, so plus a. Okay, so this is the complex potential. Now complex potential at P, तो इसमें क्या हो जाएगा, x will have to keep 0, तो ये हो जाएगा माइनस m log x 0 हो गया, सो आयोटा y माइनस a,
माइनस एम log आयोटा वाई प्लस ए, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको व्हाट वी कैन से माइनस एम log if we multiply both, so this is basically iota y square minus a square, or this is minus m log minus y square minus a square. ठीक है, this is basically complex potential at p, which is point p which is 0 comma y, or we know that the complex potential can be written as phi plus iota psi. ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई सुनिए। ठीक है, नाउ okay, now comparing real and imaginary parts. So इसमें see, this is basically okay, from this what we can say, this can be written as minus m log minus 1, okay, minus m log y square plus a square, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, basically this is minus times y square plus a square, okay, or this can be written as minus m log minus 1 can be written as e की power iota pi, so this is pi in fact, minus m pi minus m log y square plus a square, ऐसा बोल सकते हैं। Imaginary part in fact 0, so psi will be 0. From this we can say that psi will be 0. Okay, so from that we can say that y axis is in fact streamline for given arrangement of sources and sinks. Okay, so basically from that what we can say, इसका मतलब कि जो boundary rigid boundary that can be replaced by streamline. Okay, so कोई भी rigid boundary है और मान लो उससे a डिस्टेंस पे a,0 पे कोई सोर्स स्ट्रेंथ m का रखा हुआ है, so that can be replaced by two sources of equal strength at minus a,0 and a,0. ठीक है, सो नाउ फॉर ऑल पर्पज इससे जो भी हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे या वेलोसिटी पता करेंगे वो सब बेसिकली दिस इसकी जो स्टडी अपलोड होगी वो इससे की जा सकती है। ठीक है, अब इसके बाद तो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़े वही यूज होने, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल इससे निकाल देंगे, वेलोसिटी मॉडुलस डी डब्ल्यू और डी जेड होगा, स्केचिंग स्ट्रेट स्ट्रीमलाइंस एंड ऑल दोस स्टफ्स। ओके, आई होप ये समझ में आता है। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो डबलेट की बात की जाए, ओके, इमेज सिस्टम फॉर अ डबलेट और डाइपोल विद रेस्पेक्ट टू लाइन रिजिड बाउंड्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ये हमारी रिजिड बाउंड्री है, डबलेट में क्या होगा, मान लो ये a,0 पे हमने डबलेट रख दी। ठीक है, इस टाइप से रखी हुई है, ये माइनस एम है, ये यहाँ पे प्लस एम है, तो ऑफ कोर्स माइनस एम के लिए यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया कि माइनस एम का सोर्स सिंक है, तो माइनस एम का सिंक इधर रखना पड़ेगा माइनस a,0 पे। ठीक है, माइनस a,0 पे माइनस एम स्ट्रेंथ का सिंक रखना पड़ेगा, और इसके लिए डिट्टो उतनी डिस्टेंस पे इधर एक सोर्स रखना पड़ेगा एम स्ट्रेंथ का, और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो जो डबलेट मिलेगी, ठीक है, वो इसकी इमेज होगी। ठीक है, सो बेसिकली इसको बाउंड्री को हटा सकते हैं अब हम। ओके, सो ये वाई एक्सिस है मान लो, सो दिस एंड दिस इज बाउंड्री एंड दिस इज डबलेट माइनस एम से एम। ठीक है, दिस इज a,0, सो दिस बोथ आर इक्विवेलेंट। ओके, सो जब भी डबलेट और एक रिजिड बाउंड्री गिवन है तो उसके लिए जो इमेज सिस्टम होगा वो क्या होगा, डबलेट ऑफ सेम स्ट्रेंथ एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट। ठीक है, या फ्रॉम द बाउंड्री, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री, जैसा कि सोर्स में था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक है, समटाइम्स व्हाट विल हैपन कि हमें जो है, जैसे मान लो ये बाउंड्री तो हमें वाई एक्सिस था, समटाइम्स इट विल हैपन दैट कि कुछ एंगल पे बाउंड्री दे दी जाएगी, लेट अस से पाई बाई 6 है, ये बाउंड्री दे दी जाए। ठीक है,
तो इस केस में, इस टाइप के केस में मान लो एक बाउंड्री ये है और दूसरी बाउंड्री भी मान लो ये -π/6 ऐसे है, तो यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में रिमूव कैसे करेंगे हम? इस केस में अगर बाउंड्री को रिमूव करना है, इस बाउंड्री को हमें स्ट्रीमलाइन से रिप्लेस करना है, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए विल यूज अ कॉन्सेप्ट कॉनफॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। सीएससी के सिलेबस में ये नहीं है इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बट दिस इज इन सिलेबस ऑफ IFOS, ठीक है। सो फॉर आवर पर्पस फॉर फ्लूइड डायनेमिक्स कुछ लिमिटेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे, उनसे हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है। सो विल नॉट गो इन डेप्थ फॉर दिस, ठीक है। सो जैसे इस टाइप के जो भी होंगे कुछ एंगल्स, ऐसे कुछ एंगल्स के बीच इस टाइप से फ्लूइड रहा हो, मीन्स बाउंड्रीज जो होगी कुछ आर्क टाइप रहेगी, नॉट आर्क टाइप मीन्स रिजिड बाउंड्रीज जो होगी वो कुछ एंगल पे होगी, ठीक है। तो इस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज करते हैं हम बेसिकली W equals to, या W we are taking complex potential, so let us take neta is equals to Z power n, where n is given by π/2 divided by half the angle between the boundary, okay। सो जैसे सिंपली इसकी बात करें, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नीटा क्या होंगे, नीटा इक्वल्स टू Z पावर n वेयर n इज π/2 डिवाइड बाई हाफ द एंगल बिटवीन द बाउंड्री, ये दो बाउंड्री है इनके बीच का एंगल क्या है, π/6 प्लस π/6, 2π/6 है, उसका हाफ क्या हो गया, π/6, सो दिस इज 3। सो बेसिकली नीटा इक्वल्स टू Z3, ये ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे इसमें। जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, ठीक है, तो देखो जो नया जो मीन्स ये जो प्लेन है इसको जेड प्लेन बोल देते हैं, जेड प्लेन, ठीक है, बिकॉज एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है। तो अब जो नीटा प्लेन होगा हमारा, नीटा प्लेन जिसमें कि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे जेड क्या है, जेड इज आर ई रेज टू आयोटा थीटा, ठीक है। तो नीटा क्या हो जाएगा, नीटा के केस में क्या होगा, ये इसका क्यूब होगा, नीटा इज जेड क्यूब, सो बेसिकली आर क्यूब ई की पावर आयोटा 3 थीटा, ये हो जाएगा नीटा प्लेन में। तो अगर नीटा प्लेन की बात की जाए तो उसका जो ये रियल एक्सिस और जो इमेजिनरी एक्सिस होगा नीटा प्लेन में वो क्या होगा, देखो इसमें थीटा जो हमारा है π/6 है, तो थीटा π/6 है, थीटा इज π/6, तो 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज π/2, ठीक है। एंड -3 थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज अगेन -π/2। सो मतलब ये जो बाउंड्री है ये क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास π/2, इसमें जो है ये π/2 हो जाएगी एंड -π/2, मतलब ये जो बाउंड्री हो गई इसमें, ओके। सो जैसे ही हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया तो हमारा जो नीटा प्लेन है उसमें जो थीटा है वो इसका 3 टाइम्स हो गया, 3 थीटा हो गया। सो जब π/6 ये एंगल है वो इसमें π/2 होगा, ठीक है, -π/6 में -π/2 होगा, ठीक है। और ये अभी सोर्स जैसे मान लो यहाँ पे केप्ट है प्लस m स्ट्रेंथ का, तो यहाँ पे ये सोर्स है, मान लो a,0 पे था, यहाँ पे a,0 पे पुट किया है, तो इधर क्या हो जाएगा, a³ 0, बिकॉज r जो है यहाँ पे बेसिकली z क्या है, z इज r ई रेज टू आयोटा थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है a ई की पावर आयोटा 0 z, तो नीटा क्या है, नीटा इज Z3, सो a³ हो जाएगा, ठीक। सो दिस इज a³, 0। अब तो इसको सिंपल जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया अभी वो यूज कर सकते हैं। अब इसको देखो, अगर इसमें से रिजिड बाउंड्री को रिप्लेस करना है तो दैट विल बी इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग, दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि ऐसे एक सोर्स रख दिया यहाँ पे a³ 0 पे प्लस m स्ट्रेंथ का, ऐसे ही -a³ 0 पे प्लस m स्ट्रेंथ का एक सोर्स रख दिया और ये बाउंड्री हट गई, सो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस, ठीक है। तो इसमें ये स्ट्रीम लाइन हो जाएगी, सो आई समझ में आता है। इसके बाद हम सोल्व कर सकते हैं, पर जब एंड स्टेप आएगा तो उसको जेड के टर्म में लिख देंगे। सो ओके, सो लेट अस टेक सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। जनरली इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट वैसे नहीं पूछेगा कि, वैसे भी डायरेक्ट भी आ जाते हैं बट दैट विल बी 10 मार्क का, ठीक है। और जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा वो विल बी 15 मार्क का ऑफ दैट सॉर्ट, ओके। सो अभी क्वेश्चन से ये सब अच्छे से समझ में आ जाएगा, इट्स वेरी इनफैक्ट इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। There is a fluid flow between two fixed boundaries, theta equals to π/6 and theta equals to -π/6. The flow is two-dimensional due to a source of strength m, which is kept at point B, π/12. The coordinate is given in polar coordinate form, and a sink of equal strength at origin. Okay.
find the stream function, also show that one of the streamline is given by the equation as under. Okay, so basically we are given that there is a source and a sink and there is a boundary as well. Okay, so first we'll remove the boundary, replace it by a streamline, and उसके बाद तो we'll follow the process. Okay, so basically it is given कि ये हमारे पास, let us say this is x axis and this is y axis. It's a two-dimensional flow. So this is theta equals to pi by 6 and this is theta equals to minus pi by 6. Okay, so this we are talking in z plane or complex plane, argand plane. Okay, so where z is of course x plus iota y, right? अच्छा, it is given कि जो है there is a source at point this is pi by 12 and this distance is b, this is some b comma pi by 12. So there is a source of strength m and again there is a sink of strength minus m here, and the boundaries are these are the boundaries. Okay, so we'll use the conformal transformation. Okay, using the transformation neta equals to z power n, where n is pi by 2 divided by half of the angle between the boundaries, that is pi by 6. So this is 3. So neta is z power 3. Okay, I hope you समझ में आता है. So let us call this is a point okay, let us call this as a, this as b. ठीक है, then a will become what? अच्छा, neta will be z cube, that is r e की power iota theta power 3. Okay, so this can be written as r cube e की power iota 3 theta, so that is neta. Okay, so if we draw a neta plane here, this is neta plane. ठीक है, then this point a will transform into theta is 3 times theta, so 3 times pi by 12 is pi by 4. So okay, this is pi by 4 and this point will become b cube comma pi by 4. Okay, r की जगह यहाँ पे b को रिप्लेस किया और थीटा की जगह pi by 12. So r cube and 3 theta are the angle and radius here in the neta plane. ठीक है, और जो सिंक है वो तो 0 0 पे तो 0 पे ही रहना है, उससे तो इस ट्रांसफॉर्मेशन का फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज r 0 है, थीटा तो ये इसी पॉइंट पे. ठीक, सो दिस इज माइनस है. ओके, अच्छा बस अब बाउंड्री है मेरी. अच्छा ये बाउंड्री देखो, बाउंड्री पाई बाई 6 पे है, तो अभी ये बाउंड्री क्या चली जाएगी, 3 थीटा, 3 पाई बाई 6 दैट इज पाई बाई 2. सो पाई बाई 2 हो जाएगी, मीन्स पाई पाई बाई 6 जो है वो नीटा प्लेन में पाई बाई 2 है, तो ये बाउंड्री होगी. ओके, एंड माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2, सो ये बाउंड्री होगी. ओके, नाउ दिस इज सिंपल. इसको वी कैन इसका इमेज सिस्टम वी कैन बेसिकली ऑब्टेन, राइट. तो इसका इमेज सिस्टम क्या होगा. ओके, सो बेसिकली वी हैव दिस, these are the boundaries. Now this is neta plane, there is the source at b cube pi by 4 plus m strength है इसकी, and there is a sink here. ठीक है, वो माइनस m स्ट्रेंथ का. ठीक, अब ये बाउंड्री हमें हटानी है. सो बाउंड्री हटाने के लिए क्या होगा, बाउंड्री हटाने के लिए देर विल बी, बिकॉज ये ओरिजिन पे माइनस एम, सो सिमिलरली यहाँ पे माइनस एम, ड्यू टू दिस बाउंड्री देर विल बी माइनस एम अगेन. और इसके लिए यहाँ से इस इक्वी डिस्टेंस मीन्स ये जो डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे भी प्लस एम होगा. अगर इसको ज्वाइन किया जाए, सो दिस विल बी पाई बाई 4, बिकॉज ये जो है ये पाई बाई 4 है. ठीक है, और ये लेंथ ऑफ कोर्स बी क्यूब होगी. सो यहाँ पे भी ये जो है देखा जाए तो दिस इज बी क्यूब, एंड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4. सो दिस विल बी द पॉइंट. लेट अस कॉल दिस बी, this a and this is o. Okay, so now we can remove this boundary. Okay, that boundary has been removed, that has been replaced by this. ठीक है, अब देखो किसी भी, अभी हमें करना क्या है इसमें, stream function. I think we are asked to find stream function.
Okay, find the stream function. Okay, so now it's simple. Complex potential due to given image सिस्टम, इमेज एंड सोर्स, ठीक है। सो देखो इसकी वजह से क्या होगा, जो ड्यू टू सोर्स एट ए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल विल बी माइनस एम log जेड माइनस, मीन्स यहाँ पे नीटा है, नीटा माइनस दिस दिस पॉइंट that is b cube e की power iota pi by 4, right? Similarly due to source at a, source at b, ये क्या हो जाएगा, let us call this w1, this is w2, minus m log नीटा माइनस b cube e की power iota 3 pi by 4, सिंपल कॉन्सेप्ट, राइट? और यहाँ पे देखो ड्यू टू सिंक ऑफ स्ट्रेंथ माइनस टू एम, ओके, यहाँ पे बिकॉज माइनस एम एंड माइनस एम तो डबल हो गया, तो स्ट्रेंथ माइनस टू एम होगी, तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल वो क्या होगा, माइनस एम log नीटा माइनस जीरो, ठीक है, बिकॉज ये तो ओरिजिन पे, ये समझ में आता है कि जो भी रीजन बाउंड्री है उसकी वजह से जो भी, अगर मान लो सोर्स है एम स्ट्रेंथ का, तो उसके लिए जो इमेज होगा वो एम स्ट्रेंथ का सोर्स ही होगा, देन वी कैन रिमूव द बाउंड्री। अगर ओरिजिन पे ही सोर्स रखा है तो उसी उसी पॉइंट पे आना होगा उसकी जो इमेज होगी, सो दैट्स वाई माइनस एम की यहाँ पे माइनस एम ही इमेज होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, ये क्या होगा, माइनस एम log टाइम्स, ओके, नीटा, नीटा क्या है, नीटा इज नथिंग बट आर क्यूब ई की पावर आयोटा 3 थीटा, बेसिकली दिस इज जेड क्यूब, राइट? नीटा इज जेड क्यूब, so we can replace neta by z cube minus b cube e की power iota pi by 4, okay, minus m log, okay, this is sink, so this is plus 2m, and because 2m strength का sink है, log z cube minus b cube e की power iota 3 pi by 4, and just we are putting the values here, plus 2m log neta, neta is z cube. So this is the complex potential. Let us denote this by W. Okay, so basically W means this is phi plus iota psi. So minus m times log. Okay, so let us take minus m commons. This is z cube minus b cube e की power iota pi by 4 into z cube minus b cube e की power iota 3 pi by 4. Actually e की power iota 3 pi by 4. ठीक है. Okay, this can be written as e की power iota pi minus pi by 4, right? Or e की power iota pi into e की power minus iota pi by 4. So e की power iota pi is minus 1, so minus e की power minus iota pi by 4. So we can replace this by e की power minus iota pi by 4. माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, बिकॉज माइनस यहाँ से बाहर आ रहा है, ठीक है, प्लस 2m log z पावर 3, ओके। आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। नाउ माइनस m log, अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो दिस इज लाइक क्वाड्रेटिक इन, इफ जेड क्यूब को एक टी टर्म लिया जाए, सो दिस इज टी माइनस एल्फा इंटू टी प्लस बीटा, सो दिस इज z6 माइनस जेड क्यूब सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। सो सम ऑफ द रूट्स क्या है, b की पावर 3 e की पावर आयोटा पाई बाय 4 माइनस b की पावर 3 e की पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 into multiplication of the roots, this is minus b की पावर 6 प्लस m log z की पावर 6 बोल सकते हैं, 2 को उसमें ले जाओ, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। ओके, z की पावर 6 एंड दिस इज minus and this is plus, okay, minus b power 6, okay। So
अच्छा, इसको फर्दर वी कैन राइट माइनस एम log जेड की पावर 6 माइनस जेड की पावर 3 बी क्यूब इज आउट e की पावर आइटा 5/4 माइनस e की पावर minus iota 5/4 that is twice 2 iota sine 5/4. ठीक है, we know that z minus z bar by 2 iota is imaginary part of z. ऐसा ही है, so यहाँ पे अगर ये z है तो ये z bar है, so this can be written 2 iota imaginary part is okay, of course sine 5/4 minus b की पावर 6 और इसी में we can write divided by z की पावर 6. ओके, माइनस कॉमन ले लिया. आई होप यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है. सो दीज आर सिंपल सिंप्लीफिकेशन इन फैक्ट. ठीक है, सो दिस इज okay, so let us put z is equals to r e raised to iota theta. So this is minus m log r power 6 e की power iota 6 theta, right, minus sin pi by 4 is 1 by root 2, so this is root 2 iota r cube e की power iota 3 theta b cube minus b power 6. This is r power 6 e की power iota 6 theta. This is 5 plus iota psi. Okay, we need stream function. ठीक है, so इसको what we can do, we can basically arrange in real and imaginary part separately. So if we divide this is 1 minus b power 6 divided by r power 6 e की power minus iota 6 theta, that is cos 6 theta minus iota sin 6 theta. ठीक है, and this is minus iota times root 2 divided by r की power 3 and e की power iota 3 theta, right? b cube is there, so this e की power iota 3 theta that can be written as cos 3 theta minus iota sin 3 theta minus b की power. Okay, that part has been taken care of. Okay, so ये आ गया हमारे पास. This is 5 plus iota psi. और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए या यहाँ से भी कैन कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट्स. ठीक है, सो लोग के लिए ये हमने डिस्कस किया है कि लोग जो होता है, लोग z इज 1/2 लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टेन इनवर्स y बाई एक्स. ठीक है, सो इसका यूज करेंगे हम. सो साई जो होगा वो क्या हो जाएगा, या साई डिवाइड बाई माइनस एम, इसको उधर ले जाते हैं तो इसका इमेजिनरी पार्ट यहाँ तो माइनस साई बाई एम हो गया और इधर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स y मीन्स इमेजिनरी पार्ट. सो देखो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस रूट 2 बी क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब कोस 3 थीटा. ठीक है, यहाँ से आयोटा का पार्ट ये आ गया और यहाँ से आयोटा का पार्ट क्या आएगा, ये प्लस बी की पावर 6 डिवाइड बाई आर की पावर 6 साइन 6 थीटा. ओके, यहाँ से आ गया हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ये डिवाइड बाई रियल पार्ट क्या है 1 माइनस दिस पार्ट आर की बी की पावर 6 आर की पावर 6 cos 6 theta and this iota and iota, that is this is plus but iota square is minus, so minus root 2 b cube divided by r cube sin 3 theta. ये आ गया. ओके, आई होप ये समझ में आता है. सो कैलकुलेशंस का है, इसमें थोड़ा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ठीक है, सो अच्छा, so stream function, this is the stream function. Okay, so stream function psi is equals to minus m tan inverse, इसको ऐसे छोड़ सकते हैं बस. this is b power 6 और divided by r की पावर 6, उसको we can write r की पावर minus 6 sin 6 theta minus root 2 b cube r की पावर minus 3 cos 3 theta divided by 1 minus b की पावर 6 r की पावर minus 6 cos 6 theta minus root 2 b cube r की पावर minus 3 sin 3 theta. so this is the stream function. अच्छा, इसमें एक पार्ट और है. ये हमें पूछा हुआ है कि जो है ये इनफैक्ट यही एक्सप्रेशन गिवन है कि दिस विल आल्सो बी वन ऑफ द स्ट्रीम लाइन. ओके, अगर इफ वी टेक साई एज पाई बाई 2
if psi is taken as pi by 2 into minus m. ओके ओके, तो क्या हो जाएगा देन माइनस एम पाई बाई टू, ये हम ले सकते हैं बिकॉज एज साई इक्वल्स टू कांस्टेंट और विल आइडेंटिफाई सम स्ट्रीमलाइन, राइट। तो अगर वो कांस्टेंट हम लोग माइनस एम पाई बाई टू ले लें तब भी विल रियलाइज सम ऑफ द स्ट्रीमलाइन। ओके, सो ये हमने ले लिया। सो दिस इक्वल्स टू माइनस एम टेन इनवर्स, ये जो है ऐसे कैसा पुट किया इसको। अब देखो m से m कैंसिल हो गया, सो दिस इज 10 इधर आएगा, सो 10 पाई बाई टू दैट इज इन्फिनिटी, दैट इज 1/0 इज इक्वल्स टू ये जो एक्सप्रेशन है b की पावर 6 r की पावर माइनस 6 साइन 6 थीटा माइनस रूट 2 b क्यूब r की पावर माइनस 3 कोस 3 थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस b की पावर 6 r की पावर माइनस 6 कोस 6 थीटा माइनस रूट 2 b क्यूब r की पावर माइनस 3 साइन 3 थीटा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो देन दिस इज डन, ठीक है। अब देखो इसमें अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए देन 1 माइनस बी की पावर 6 आर की पावर माइनस 6 कोस 6 थीटा माइनस रूट 2 बी क्यूब आर की पावर माइनस 3 साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस विल बी one of the streamline for given fluid flow। ओके, एंड प्रूव यही हमें पूछा हुआ है, उसमें पूछा हुआ है कि वन ऑफ द स्ट्रीमलाइन ये होगी, तो यस ये ऑफ कोर्स होगी। सो जब भी हमें पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन पूछा जाए तो साई को क्या करो, साई को 0 ट्राई करो, साई को पाई बाई 2 ट्राई करो, यस साई को पाई बाई 4 भी ट्राई करो, ठीक है। सो वो उस एक्सप्रेशन को देख के समझ में आएगा कि वैल्यू साई की क्या हमें पुट करनी है, ठीक है। सो आई भी समझ में आता है। सो इससे नॉर्मल प्रोसेस था, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं इनफैक्ट। यूज मेथड ऑफ इमेजेस टू प्रूव दैट इफ देयर बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ m एट पॉइंट z नोर इन ए फ्लूइड बाउंडेड बाय लाइंस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 8, देन वी हैव टू शो कि जो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल होगा वो ये होगा। ओके, z नोर बार पावर 8। ओके, फर्दर द वेलोसिटी फ्लूइड फ्लो एट एनी पॉइंट। ओके, सो नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना है। ओके, सो व्हाट वी आर गिवन, अगर z प्लेन की बात करें, z प्लेन की बात करें तो उसमें वी आर गिवन कि इस टाइप से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये कोई जेड नोड पॉइंट है वहाँ पे कि एक सोर्स स्ट्रेंथ m का रखा हुआ है और इसमें जो बाउंड्रीज है ये है थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 8, ठीक है, एंड थीटा इक्वल्स टू 0, ये इसकी बाउंड्री है, बेसिकली ये इसकी बाउंड्रीज है, ठीक है। सो विल यूज द ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इसको नीटा प्लेन में ले जाएंगे, नीटा इक्वल्स टू जेड पावर n वेहर वेहर n equals to pi by 2 divided by half the angle between the boundaries, so pi by 8 by half means pi by 16, so this is 8, so this is n। okay, so neta is z power 8, so this will be the transformation we'll use here। so अगर इसको z प्लेन नीटा प्लेन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीटा प्लेन में थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0, तो ये क्या z पावर 8 दैट इज r e raised to iota theta पावर 8, राइट। सो r पावर 8 e की पावर आयोटा 8 थीटा। सो देखो यहाँ पे जब थीटा 0 है तो 8 थीटा भी 0 ही होगा, सो ये बाउंड्री तो यही रहेगी। जब थीटा पाई बाई 8 है तो 8 थीटा पाई हो जाएगा, सो ये बाउंड्री जो है ये हो जाएगी। सो ये बाउंड्री हमारी ये होगी और सोर्स जो है हमारा वो जेड नोर, अच्छा इसकी जो सोर्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड नोर क्यूब हो जाएगा। अच्छा ये जेड नोर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है खुद, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ आर नोर ई की पावर आयोटा थीटा नोर इस टाइप कुछ है। बेसिकली ये जो है फुल कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स नोर प्लस आयोटा वाई नोर टाइप, तो जेड नोर क्यूब जो होगा दिस विल इंक्लूड द थीटा इज वेल। तो ये हो गया। अब देखो ये प्लस एम का सोर्स है, तो इस बाउंड्री में अब देखो इसको स्ट्रीम लाइन से अगर रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको हम लोग स्ट्रीम लाइन से रिप्लेस करें सो दिस विल बी जो देखो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स डैश जो भी नीटा प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जेड नोर क्यूब है सोर्स प्लस एम का, तो इसकी इमेज जो इस बाउंड्री में यहाँ पे क्या होगा, वो भी एक सोर्स होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अच्छा देखो अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें एक्स तो सेम ही रहेगा पर वाई माइनस हो जाएगा। ओके, इसका मतलब अगर ये जेड यहाँ पे जो है एक्स प्लस
आयोटा वाई है, तो यहाँ पे जो होगा, जैसे मान लो एक्स नोट वाई ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स नोट माइनस आयोटा वाई नोट. So this if this is z then this will be this is z नोट then this will be z नोट बार, राइट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z नोट बार का क्यूब, नीटा में जाएंगे तो ये ठीक है. सो दिस इज नीटा प्लेन में, ठीक है. सो बस, और बाउंड्री हैज बीन रिमूव्ड, सो वी हैव these two sources of strength m जिनके कोऑर्डिनेट आल्सो वी नो. ओके, सो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू these sources is W इक्वल्स टू माइनस एम लोग, नीटा प्लेन में कर रहे हैं, नीटा माइनस जो पॉइंट है इसका दैट इज जेड नोट क्यूब माइनस एम लोग नीटा माइनस जेड नोट बार क्यूब. ओके, आई होप समझ में आता है. सिंपली फॉर्मूला यूज किया हमने. दिस कैन बी रिटन इज 5 प्लस आयोटा साई. अच्छा, इसको पूरी तरह से जेड प्लेन में ले जाते हैं. नीटा इज जेड पावर 8, दिस इज नॉट क्यूब, दिस इज 8, राइट. दिस इज 8 क्योंकि पावर 8 कर दी ना हमने. ट्रांसफॉर्मेशन इज r पावर 8 या z पावर 8. ओके, so this is 8. okay, so this is 8 in fact. so z पावर 8 माइनस z नोट पावर 8. अच्छा, लोग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा, अच्छा चलो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, z पावर 8 माइनस z नोट बार 8. ओके, आई होप ये समझ में आता है. ओके, सो जस्ट वैल्यू पुट कर दी हमने. सो दिस इज 5 प्लस आयोटा साई, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव. अब देखो इसमें वेलोसिटी पता करनी है किसी भी पॉइंट पे, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट पी जेड. ओके, सो वो क्या होगी, दिस इज डब्लू, सो डी डब्लू ओवर डी जेड क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, माइनस एम डिवाइड बाई, इसको कर दो चलो, जेड पावर 8 माइनस जेड नोट पावर 8, और इसका खुद का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 8 जेड पावर 7 माइनस एम, अब इसका करेंगे तो डिवाइड बाई जेड पावर 8 माइनस जेड नोट बार 8, और इसका खुद का करेंगे तो 8 जेड पावर 7. ओके, इसका मॉडुलस विल बी आवर वेलोसिटी. ओके, so velocity will be modulus of this, so modulus of this, so that is 8 m z power 7, that can be taken out, ठीक है. and this is z power 8, so this is z naught power 8 minus z naught bar power 8 divided by z power 8 minus z naught power 8, z power 8 minus z naught bar power 8. okay, so this is the velocity at any general point. I hope समझ में आता है. So hence proof. Okay.